جی زاہد صاحب، ہاں جی آپ چائے پی رہے ہیں؟ ریڈی ہیں آپ؟ ہاں میں ریڈی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انٹرویو ہم نے آپ کا لیا تھا تو اس میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا پتہ جرمنی کا سینڈ کرتا ہوں. آپ نے ابھی تک وہ پتہ نہیں سینڈ کیا. وہ اس لیے پتا تو میں نے دے دیا آپ کو، پچھلی دفعہ دے دیا تھا واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے، پتا میں نے آپ کو دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے پولیس جو پروٹیکشن کرتی ہے جرمنی میں، انہوں نے آپ کے متعلق تحقیقات شروع کر کہ یہ پتہ کس لیے مانگتا ہے مودی، کیونکہ اب اس تحقیقات میں یہ ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پتہ نہیں دینا، اب وہ تمہیں انٹرپول پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کرے گی. تو ان کی ہدایات کے مطابق کیونکہ وہ پروٹیکشن دیتے ہیں جرمنی میں، یورپ میں، تو مجھے وہ کرنا پڑتا ہے جو وہ کہیں. تو آپ ذرا ایڈریس کو چھوڑ دیں اور ذرا اس پہ آئیں جو موضوع ہے ہمارا. اچھا، جرمنی کی پولیس جو ہے نا آپ میرے پیچھے لگ گئی ہے، اور وہ جو ہے نا جرمنی کی پولیس پیچھے لگ گئی ہے کہ میں نے آپ کا پتہ مانگا ہے. پتہ نہیں مانگا، ہم آپ نے مجھے دھمکی دی تھی. میں نے دھمکی دی ہے؟ آپ نے پچھلی دفعہ یاد ہے آپ کو آپ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ آپ نے مجھے کہا تھا جو میرے دوست ہیں، میرے پولیس ہیں، جو پادری ہیں، وہ تو آپ کا سنیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں پر اہم ہے. یہ میں نے دھمکی تو نہیں دی، میں نے تو حقائق بیان کیے تھے. آپ نے عیسائیوں کے خدا کو برا بلا کہا تو وہ عیسائی ٹھیک تو ہے، اب آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ ٹھیک ہے، دھمکی نہیں ہے، حقائق ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو پولیس ہے وہ اپنا کام کرتی ہے. ہاں، پولیس بھی تو عیسائی ہیں نا، وہ بھی اپنا کام کریں گے، وہ آپ کو تلاش کریں گے اب. ایسی کوئی پاکستانی پولیس تھوڑی ہے. ہاں تو وہ کیا، وہ جو ہے نا پاکستانی مسلمان ہے. وہ کام کرتے ہیں اور وہ آپ کا اچھا کھٹا تلاش کریں گے کہ اور یہ مجھے جو تو ایک عرصے ہے کے تلاش کر رہے ہیں، مجھے تلاش کرنے کو چھوڑیں. اپنے دعوے کو دیکھیں. آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ چھپ چھپا کے گھر میں بیٹھ کے تبلیغ کریں گے. ایڈریس مت مانگو، میں نے تمہارا ایڈریس مانگا تھا تم سے. ہاں، اب اس بات پہ آتے ہیں کہ ایڈریس ہم نے اس لیے مانگا کہ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے نبوت کا، نبوت کا دعویٰ ہے. نبوت کا ایڈریس سے کیا تعلق ہو گیا؟ نبوت کے دعوے کا ایڈریس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی. تم میری بیوی کا پوچھ رہے تھے، تمہارے گروپوں نے پھر گالیاں دی، وہ بھی لعنت ملامت کر رہے تھے، اور میری بیوی کا، میرے بچوں کا، ان کا دعوے سے کیا تعلق ہے؟ اب مجھے پھر بھی تمیز کے ساتھ میں نے تمہیں سب جوابات دیے، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے میں انڈر پولیس پروٹیکشن ہوں، تو وہ واچ کرے گی آپ کو اور وہ تحقیقات کرے گی. تو اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ مجھے کوئی خطرہ ہے تو سب سے پہلے آپ کو پکڑیں گے. ٹھیک ہے جی؟ میں وہ عام آدمی نہیں ہوں، میں جرمنی کے اندر مجھے اسٹیٹس ملا ہوا ہے، میرے ساتھ پولیس چلتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایڈریس مانگا اور لوگ آ گئے یہاں پہ. مجھے آپ کے انٹرویو کے بعد آپ کے جو گروپ ہیں انہوں نے مجھے ہزاروں دھمکیاں دی ہیں، ہزاروں دھمکیاں مجھے جرمنی سے ملی ہیں. آپ کی وجہ سے پاکستان سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو پھر پولیس نے تو تحقیقات کرنی ہے. یہ تو بڑی عام سی بات ہے. اس کو سوچنا چاہیے تھا نا آپ کو پہلے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ چیزیں. اچھا، یہ جو گروپ ہیں آپ کے، میں نے تو کسی گروپ میں شمولیت نہیں اختیار کی، نہ میں نے ان سے کچھ مانگا. یہ ایک دم اتنے گروپ کیسے آ گئے؟ اور وہ شاہ صاحب کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی تقریب، آپ کی عزت، آپ کا یہ فنا کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اچھا ان میں سے جرمن بھی ہے جنہوں نے جرمن لینگویج میں کہا ہے کہ تیرا جو اپنا مناظرہ ہو رہا ہے شاہ صاحب سے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے.
तो उनको लगाम भी तो डाले ना जरा ग्रुपों को, उनका आपका असर है उन पे, तो उनको कहो कि गालियां नहीं देनी, कत्लों की धमकी नहीं देनी। अगर वो आपकी इज्जत और तकरीम करते हैं, अगर वो आपका नाम लेके ये कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, और मेरे पास है तो सारे ग्रुप, वो मैंने अभी आप हमें भी कुछ बोलने देंगे, कुछ सांस लेंगे थोड़ा सा, हमें भी बोलने देंगे। आप चाय पिए उतनी देर, आप चाय पी लें, आप चाय पिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने एक ही सांस में इतनी बातें की हैं, अब हर चीज का मुझे जवाब देना होगा, तो तवज्जो के साथ, तहम्मुल के साथ आप सुनिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले शुरू हो गई, हम क्यों नहीं मौजूद, कम से कम बात करने की तमीज तो होनी चाहिए कि बात काटनी नहीं चाहिए। मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात भी तो सुने आप। आपको तो एक अखलाकी शुरू हो रही है, अगर यही काम करना है तो फिर काहे का मुनाजरा, मुझे समझ नहीं लग रही। आपके अंदर तो इखलाकियात की बहुत ज्यादा कमी है, बार बार आप गुस्से में आ जाते हैं, बात काटते हैं, तो दावा आपका नबूवत का है। थोड़ा सा सुने तो सही, अभी तो डिबेट शुरू भी नहीं हुई। आपने जितनी बातें की हैं उसके मुझे जवाब तो देने दें। बोले जी, आप खामोशी से तहम्मुल भी रखते हैं। तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त, ये सारी चीजें एक कामिल इंसान में होनी चाहिए। अभी तो आप कामिल इंसान बनने की आप कोशिश करें, वजह से सुने। फजूल बातें नहीं है, मुझे जवाब तो देने दे, आप सुन लें, सुन लें। सवाल ही ऐसा किया मुझसे कि इंटर पुलिस मेरी तलाश कर दी, मुझे क्या जरूरत है तलाश करने की, वो उनका ये काम है अपना, ये पाकिस्तान पुलिस थोड़ी है गुजरांवाले की, है कि वो आपका असर पड़ जाएगा। यहाँ की अपना एक महकमा है आजादी का। आपने ब्लड प्रेशर की दवाई ली है, चाय के साथ उसको भी ले। गलत बात नहीं करनी, शैतानी वाली बात नहीं करनी। मैंने पहले भी कहा था कि मौजू पे बात करनी है, ठीक है कि नहीं। मैंने तुझे कोई प्राइवेट सवाल किया, मुझे गुस्सा नहीं दिलाना तुमने। मैं चाय पीऊं, मैं दूध पीऊं, ये तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है कि नहीं। हमने मौजू पे बात करनी। अब मैं कह रहा हूँ बात करें यार, मैं सुन रहा हूँ, चाय पीनी है, पानी पीना है, ये क्या बात शुरू कर दी। अब मुझे बोलने देंगे आप, अब थोड़ी देर खामोश रहे आप, इसको छोड़ दें। ये पिछली अभी मुझे हर चीज का तफसीली जवाब देने दे, डिबेट हम बाद में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जनाब, मेरे लोगों ने आपको गालियां दी हैं, धमकियां लगाई हैं, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको गालियां भी दी, धमकियां भी दी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको नाराज तो नहीं होना चाहिए। आप तो जनाब वो गुस्से में आ गए हैं कि पता नहीं वो दो चार गालियां किसी ने निकाल दी हैं, तो आप इतने नाराज हो गए हैं। मेरी बात अभी जवाब देने दें, बोलना नहीं है, बीच में बोलना नहीं है, खामोशी से सुनते रहे, सब्र भी रखें थोड़ा सा। आपको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए आपको कि मुझे कोई गाली दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो नबी होते हैं वो तबलीग करने के लिए आते हैं। आप इतनी सेफ्टी में रह रहे हैं, छुप के रह रहे हैं, घर में जब रहेंगे किसी को पता ही नहीं बताएंगे अपना कि मैं हूं कहां पे, तो खाक आपकी तबलीग होनी है। आपका खुदा आपको, मुझे जवाब देने दे, आप कॉपी पेंसिल ले लें, लिखते रहे। ये देखिए कॉपी पेंसिल मैंने भी ली है, हर चीज आपकी लिख रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। मुझे जवाब देने दे, खामोशी से सुने। मैं घर पे बैठा हूँ, हर शहर में हजारों लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ। आप कॉपी पेंसिल ले लें, लिखते रहे, उनके जवाब बाद में दीजिएगा। आप लिखते रहे, मुझे जवाब देने दे, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। आप तो जनाब अखलाकियात से गिर रहे हैं। घर में बैठे हुए हो, पुलिस प्रोटेक्शन, और मैं हजारों लोगों के सामने शहर में बोल रहा हूँ, तुम्हें मालूम तो चाहिए पहले। क्या तुम ये क्या, मैंने आपको पिछली दफा भी कहा था अच्छे तरीके से अपना इलाज करवाएं, आपको इलाज की जरूरत है। आपको ये जो लानत पड़ी है मौलवी पे अपना इलाज कराओ। तुम्हारी वजह से पाकिस्तान का खाना खराब हो गया है, आप अपना इलाज कराएं। मुझे इलाज कराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो तो नजर आ रहा है आप जिस तरह के ठीक ठाक हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें ये किसने इंफॉर्मेशन दे दी, मालूमात कि मैं घर में छुप के बैठा हूँ, ये किसने दी तुम्हें? आप कॉपी पेंसिल लेंगे, कोई करीब कॉपी पेंसिल है? लेकिन गलत बात नहीं करनी ना। आपके पास कॉपी पेंसिल है कोई करीब? ले ले, ले ले, ले, चलो शुक्र है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी बात मानते हैं आप मेरी।
ले आप लिखते रहे, बाद में जवाब मैं आपको टाइम दूंगा, आप बाद में बोल लीजिएगा। जनाब जो नबी होते हैं वो तबलीग करने के लिए आते हैं, अपने खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं, और जब वो घरों में रहेंगे अपना पता ही नहीं किसी को बताएंगे, अपना पता ही नहीं बताएंगे, तो वो तबलीग क्या खाक करेंगे। और ये तो फिर सरासर इससे पता चलता है कि एक बंदा फितना और फसाद पैदा करने के लिए जनाब इस किस्म के काम कर रहे हैं। ये तो फितना और फसाद की दलील है कि जनाब अपना वो जनाब पता भी नहीं बताता और अपने पास किसी को आने में ही नहीं देता, और अगर कोई मुकालमा करने के लिए आना चाहता है तो उसको अपने करीब भी नहीं फटकने देता। तो ये तो झूठा होने की एक सबसे बड़ी दलील यही है। दूसरी बात यह है कि आपने वादा किया था, आपने ये उस वक्त क्यों नहीं सोचा था। आप लिखें मोहतरम, मैं पहले कह रहा हूं आप कॉपी पेंसिल लेके लिखते रहे, बाद में आपको टाइम देता हूं। आपने ये वादा किया एक अच्छा इंसान होने के लिए वादे की पासदारी होनी जरूरी होती है। आपको ये 15 दिन पहले सोचना चाहिए था। उस वक्त आपने कहा कि मैं अभी करता हूं, सारी दुनिया ने सुना, ऑनलाइन हमने दिखाया था। ये मौली वाली बातें नहीं, आप अभी मेरी बात ही नहीं कंप्लीट होने देते। ठीक है, सुन लो, एक सवाल करो और एक जवाब दो, 10 मिनट फजूल बातें नहीं करनी। अभी मुझे पिछली सारी बातों के जवाब देने देना। पहले पिछली सारी बातों के आप एक ही सांस में इतना कुछ कह गए थे। पहले एक सवाल करो कि भाई आप छुप के क्यों बैठे हुए, मैं आपको जवाब देता हूं। ठीक है, मैं हर शहर में मेरी वीडियो है, हर शहर में मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, हर शहर में हजारों आपने देखी मेरी वीडियो 200 खान। मैंने आपकी वीडियोस नहीं, हर चीज आपकी देखी है। मैं छुप के बैठा हूं जी। वो कहाँ पे है? अभी आप जिस जगह बैठे हैं उसका एड्रेस बताएं। उसको छोड़ो। ये क्यों छोड़ो, बताएं क्यों छोड़ो? क्यों छोड़े? आपके मोहल्ले के करीब कुछ मुसलमान लोग हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप क्या बात नहीं कर देंगे उनसे? करे बात। जी। हर हफ्ते, हर जुमेरात, हर मंगल फ्रैंकफर्ट में, मैंने पहले भी कहा था, हाफनहॉफ के नजदीक साइल है, साइल उसे कहते हैं कोस्टबला वाक़े। मंगल को, जुमेरात को, हफ्ते को खुले तौर पे हजारों लोगों के सामने मैं किताबें मुफ्त देता हूं। तो मैं कहा छुपा हुआ? आपने झूठ क्यों बोला था 15 दिन पहले? झूठ क्यों बोला? आपने कहा मैं अभी देता हूं व्हाट्सएप के ऊपर। आपने क्यों झूठ बोला था? क्या झूठ? आपने कहा मैं अभी, रिकॉर्डिंग मौजूद है, सारी दुनिया ने सुनी थी। आपने कहा व्हाट्सएप पे मैं अभी मैसेज। मेरे पास काफी मीटिंग होती है, मुझे बोलो तो सही, क्या झूठ बोला? झूठ ये बोला था आपने, मैंने कहा था पता सेंड करें, आपने कहा व्हाट्सएप के ऊपर अभी कर देता हूं। मैंने तुम्हें सेंड कर दिया था लाइव, उसी वक्त पता सेंड किया के अंदर है। लाए अभी दिखाएं, इधर ही दिखाएं, वीडियो के अंदर दिखाएं, रिकॉर्डिंग हो रही है, दिखाएं, निकालें। लाइव की 30 मैंने रोक को आपको उसी वक्त मैंने अभी ये गौर, ये मैदान लाए, निकालें। हिस्ट्री तो होगी ना आपके पास, निकाल ले। और ये देखो मैंने आपको भेजा पता, ये क्या झूठ बोल रहे हो? हाँ। और कहते तो भी भेज देता हूँ। ये what are you talking about? Last time nonsense, झूठ बोले जा रहे। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने उसी वक्त इंटरव्यू से पहले भेजा। मैंने बंदे में बोलना चाहते हो हैं, कत्ल करना, तुम कातिल हो नबियों के, लानत भेजी थी तुम्हारे रसूल ने तुम पे, भत्तर फिर के हो तुम। ये अभी भाई करो, ये तुम्हारे हजारों ग्रुप है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक सेकंड, ब्रिंग दी मोसेस है, एक मोसेस है, बिकॉज मैंने उसी वक्त आपको भेजा था एड्रेस लाइव सी, और आपको कहा भी था उस वीडियो में। आप तो एक सेकंड में जो है ना वो अल्लाह तक रसाई हासिल कर लेते हैं, हम कलाम हो जाते हैं। तो एक सेकंड नहीं लगना चाहिए था आपको, फौरी तौर पे मैसेज अल्लाह से पूछ लेते कहाँ पे है। पाकिस्तान पे भेजी हुई है, इनको ऐसे ही यार आपने खुद कहा था कि एक सेकंड नहीं लगता मुझे अल्लाह से
बात करते हुए? पूछे जरा कहाँ है, किस जगह मैसेज सेंड किए? जब चाहे अल्लाह बुलाए, तुम ठेकेदार हो अल्लाह के। नहीं, आपकी बात मैंने की, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? आपने खुद कहा है। देखो, तुम आए, तुमने पहली फजूल बात की कि मैं छुप के बैठा हूँ, फिर तुमने बात की मैं क्या पी रहा हूँ। ये तो अभी सारी दुनिया देख रही है, छुप के बैठे हैं आप, फितना फसाद खड़ा कर रहे हैं, छुप के बैठे हैं आप। सबको बताए ना आप, हो सकता है इन सुनने वालों में से कोई तनवीर अत्तारी हो वीडियो के अंदर जो आपसे मुलाकात करना चाहता हो, कोई मुमताज कादरी हो, कोई आपसे मुलाकात करना चाहता हो। नहीं, कोई हो सकता है, कोई। आप डरते क्यों हैं? दावा तो आपका नबूवत का है, डर खौफ किस चीज का आपको? मैं हजारों लोगों के सामने बोल रहा हूँ, कैसे दावा? हाँ बताएं, पता बताएं, बताएं पता बताएं फिर। इतना अगर डर खौफ नहीं है आपको, पता बताएं। तू चाहता है कि कत्ल हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना राह रास्त पे आ जाए, आपको कोई आए समझाए आपको कि आप अपना इलाज कराएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जनाब आप राह रास्त पे आ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई मिले, कोई सुनने वाला आपके जर्मनी के करीब रहता हो, वो आपको समझाए कि मियाँ जी अपना इलाज करवाएं, कोई फकी शक्की वो लेके जाए साथ। और मुझे ये जो धमकियां दे रहे हैं पुलिस की, जर्मनी की पुलिस, ये वो, मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, जूते की नोक पे रखता हूँ मैं। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन बात लगी हुई है। ये दो गुआ बैठे हैं, फिर झूठ बोले जा रहे हो। कौन बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? और जो बैठे हुए तुम्हें क्या यूसैन की लाइफ, ये आपकी वीडियो दिखानी है जर्मनी में, ताकि लोगों को पता चले आप कितने घटिया किस्म के मौलवी। हाँ दिखाएं दिखाएं, उनका तर्जुमा करके। पिछली डिबेट जो हुई थी उसका भी इंग्लिश करके बताए इनको कि आप ईसाइयों के खुदा को गालियां निकालते हैं, किस तरीके से आपने निकाली। लानती यूरोपियन, उन यूरोपियन को पता होना चाहिए तुम किस किस्म के घटिया किस्म के लोग हो। तुम बंदे मरवाते हो, तुम डाकू हो, चोर हो, तुम शैतानियों की औलाद हो तुम। उन्हें पता चला, और मैंने किया है, इसलिए मैंने ये वीडियो भी आप आम जाएगी, लोगों को पता चलेगा। और ये तुम बार बार मुझे एड्रेस मांग रहे हो ना, ये अपना नुकसान करा रहे हो तुम, समझे कि नहीं? डर गए आप डर गए, जाहिर साहब डर गए आप। वो मुझे क्या करने की जरूरत? डर गए आप। आपकी ऑडियो मेरे पास रखी हुई है, आपकी ऑडियो मेरे पास रखी है, जिसमें आपने कहा था कि खुदा के नबी डरते नहीं है। आप तो अपनी बातों से ही झूठे साबित हो रहे हैं। क्या तबलीग करेंगे आप? समझे कि नहीं? आपने कहा था कि खुदा के नबी डरते नहीं है। आपने खुद कहा था खुदा के नबी डरते नहीं है। आपने खुद कहा था खुदा के नबी डरते नहीं है। आप डर गए, आप तो पता देने से ही डर रहे हैं, तो आगे बात क्या होगी? डर गए और तुम्हारी लानतों की वजह से, तुम शैतानों की औलाद हो, तुम बंदे मारने के लिए एड्रेस मांग रहे हो। अच्छा ये सुनिएगा, ये स्टेटमेंट सुन ले जरा। वो YouTube पे ना जो खान खोल आ गए, वहां और भी बहुत ही 200 वीडियो हैं, उन्हें भी देखो और पढ़ो मैं क्या कह रहा हूं, और सुनो, फिर बात करना मुझसे, आम करो उनको। तुम क्या समझते हो कि मैं डरा हुआ हूं? अल्लाह के नबी कभी नहीं डरते किसी से। तुम क्या समझते हो कि मैं डरा हुआ हूं? अल्लाह के नबी कभी नहीं डरते किसी से। वो YouTube पे ना जो खान खोल आ गए, जी तुम क्या समझते हो मैं डरा हुआ हूं? खुदा के नबी डरते नहीं है। सुने जरा, सुने जरा। तुम क्या समझते हो कि मैं डरा हुआ हूं? अल्लाह के नबी कभी नहीं डरते किसी से। वो YouTube पे ना जो खान खोल आ गए, वहां और भी बहुत ही 200 वीडियो। मैं बोल रहा हूं, तुम्हें क्या हो गया मुल्लाओ? तुम 72 लानती मुल्लाओ हो, 72 फिरके हो तुम। तुम्हारी लानत अगर मेरे हाथ में, मैं तुम्हें किक कर दूं पाकिस्तान से, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे थोड़ा सा। मोहम्मद अली जिन्ना ने सही कहा था कि तुम्हारा मजहब और गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तुम्हारे सर पे सही करके बैठा है, उसकी खबर पुठो, फिर बात
मेरे साथ। अभी डिबेट शुरू करें फिर? हाँ करें जी। ये फजूल बात तुमने शुरू की है। जी डिबेट शुरू शुरू करते करो, हैं। मैं तो तैयार हूँ। इतनी देर हो गई है, कोई बात, कोई अभी तक मैंने कोई तुक की बात नहीं सुनी तुमसे। जी अभी डिबेट शुरू कर लें फिर? हाँ चलें जी। कल मैं ऐसा है कि जो हमारा तय पाया था कि कुछ देर आप बात करेंगे कुछ देर मैं। टाइम अभी बता दें आप, 1-1 मिनट के 2-2 मिनट जो मर्जी ले लो, बताएं। लेकिन जब मैं बात करूं तुमने नहीं बोलना। टाइम बताएं। मेरी टाइम 2-2 मिनट, 2 मिनट आपने बात करनी, 2 मिनट मैंने बात करनी। ठीक हो गया। ठीक है, 5-5 मिनट बात करेंगे तो फजूल हो जाएगा। ठीक है चलें। हाँ जी बोले, आप बोले। जी 2 मिनट आप पहले अपना दावा पेश कर लें, आप बोल लें। आपने कहा था म्यारे नबूवत, मैंने आपको पहले भी बता दिया था और फिर बता दिया कि हक ताला ने मुझे अपने पास बुला के कहा कि इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत, तमाम मजहब जो है वो खत्म हो गए, एंड हो गए। शरीयत मनसूख हुई, कुरान मनसूख हो गया, बाइबल मनसूख हो गई है। तमाम जो शरीयत, जो मज़ाहिब हैं खत्म हो गए। ये मजहबों से शुरू हुए थे और इनकी ये फरिश्तों से शुरू हुए, ये खत्म हो गए हैं। अब जो नया जमाना आएगा वो जमाना है जमीन के वारिस उसके मोहब्बत करने वाले होंगे और इंसान उसकी कदर को पहचान जाएगा। मैंने पहले भी कहा था जब तक मुसलमान मेरी किताब नहीं पढ़ेंगे उनकी खोपड़ी में कोई समझ नहीं लगेगी। ये मेरा दावा है पहले। दूसरा मेरा ये है कि मैं मजहबों की तरफ नहीं आया, मैं इंसानियत, पूरी इंसानियत की तरफ पैगाम लेके आया हूँ। हक ताला ने, पहले भी कहा था मैंने, हक ताला ने मुझे अपना रसूल कहा, अपना दिल कहा। मैंने अंबिया के ठिकाने देखे हैं फरदौस में, और वो वहां भी अपनी मार्फत में तरक्की कर रहे हैं। किसी के पास नूर है तो किसी के पास अंधेरा है बीच में। कोई नबी कामिल नहीं, सब बशर हैं, सब गलतियां की उन्होंने। कोई ठेकेदार नहीं है नबी जो ये कह रहे कि मैं कामिल हूं और मैं मासूम हूं। सब गलती और गलती के पुतले हैं। उनसे गलतियां मजमून में भी हुई और किताबों में भी हुई। मेरे सामने जो कुरान है वो मखलूक है, वो इलाही किताब नहीं है। और अब क्योंकि मैं बात ही नहीं करना चाहता, जब वो चीजें मनसूख हो गई, क़यामत मैं हूं, मेरे से ये नई दुनिया का जमाना शुरू हो जाएगा, ये खुदा ने कहा है। और अभी 100 साल नहीं बीतेंगे कि यहां से तालीम, मुझे यहां जर्मनी में भेजा गया था, यहां से तालीम जो है होती हुई यूरोप, और आप जब लोग मर खप जाएंगे ये तालीम एशिया में भी फैल जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। फिर एक खुदा होगा उससे, और जितने मज़ाहिब हैं ये सब अपने मजहबों से निकल कर ये अल्लाह ताला की मार्फत के समुद्र में जा पड़ेंगे। ये जमीन नबियों से मामूर हो जाएगी। आप लोग तो कहते हैं ना कि नबी नहीं आ सकता, नबी तो क्या, ये जमीन नबियों से मामूर हो जाएगी। हर इंसान अपना ताल्लुक खुदा से रखेगा, ये उसने, और तकदीर का मसला हल हो जाएगा। मौत का टाइम आपका नहीं कंप्लीट है। हुआ, टाइम कंप्लीट हुआ। चलो ठीक है। अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। 2 मिनट आपने बात की, 2 मिनट मैंने बात करनी है। ठीक है। नो साइड। दावा है आपका कि आप नबी हैं और जनाब बातें ऐसी ऐसी कर रहे हैं कि जो अक्ल से मावरा है, अक्ल में आती ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कि अगर आपको किसी पागल खाने के डॉक्टर से चेक करवाया जाए तो वो आपको भर्ती कर ले उस उधर हॉस्पिटल में, यकीन माने। वो कहे कि हमें तो जाहिद खान साहब की ही ज़रूरत है, इनका इलाज हम सबसे पहले करेंगे। यकीन माने जो आपका इलाज करेगा, और अल्लाह करे कि आपका इलाज हो जाए, तो उसको तो नोबल इनाम मिलेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं किसी नबी को मानता नहीं हूं,
किसी किताब को मानता नहीं हूँ, मैंने किसी कहा नबी मंसूख को हो गया। मानता नहीं हूँ, किसी नबी की शरीयत पे अमल करता नहीं हूँ, किसी किताब पर अमल करता नहीं हूँ, चाहे वो तुरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो या कुरान हो, इन पे मेरा एतकाद नहीं है, मेरी अपनी शरीयत है, वो सब मनसूख हो गई हैं। ये अभी कुछ देर पहले आपने कहा है। फिर आपने ये भी कह दिया कि नबी, जिस तरीके से मुसलमान कहते हैं नबूवत का सिलसिला मुनक़ता हो गया, ऐसा नहीं है, अभी और नबी बड़े आएंगे, मैं भी आया हूं, और भी आएंगे, मामूर होंगे, वगैरह वगैरह। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आप ये बता दें कि नबी की तारीफ क्या है, और ये नबी का जो अकीदा आपने लिया है ये कहां से लिया है, बात करें। ये जितने अभी तुमने बातें की हैं फजूल हैं और झूठी हैं। और एक बात तो साबित है कि तुम अनपढ़ लोग जो हो मौलवी, ये गुजरांवाला पाकिस्तान में बैठकर इस किस्म की फजूल बातें करते रहा करो जैसे वो डड्डू करते हैं। जब तुम यूरोप में आओगे तो तुम्हारी जाहिलियत और ऐसी बातों को कोई नहीं सुनेगा। एक बात है, मैंने नहीं कहा था कि मैं नहीं मानता, मैंने कहा यह है कि ये अब तालीमात मनसूख हो चुकी है, ये कहा। मैंने किसी नबी का इनकार नहीं किया। तो बात है, हाँ, अगर आप इधर आ जाएं तो मैं आपको कह देता हूं कि 2 घंटों में आपको पागल खाने क्या, आपको पागल खाने से निकलने ही नहीं देंगे वो लोग, समझे कि नहीं। अब मियारे नबूवत क्या है, ये मौलियों ने ठेका लिया हुआ है। मैंने पहले भी अर्ज की थी, नबी नबी नहीं बना सकता, फरिश्ते नबी नहीं बना सकते, ये अख्तियार कुल्ली तौर पर खुदा को हासिल है। और आप लोगों ने जिन पे ये पाकिस्तान की लानत पड़ गई है, ये ठेका ले लिया है कि मैं साबित करूंगा कि झूठा। तुम्हें कैसे पता लग गया कि मेरा मामला खुदा के साथ झूठा है या सच्चा। एक मेयार जो है वो ये है, अगर मैं झूठ बोलता हूं खुदा पे तो खुदा मुझे पकड़ेगा और मेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप मुझे झूठा कहेंगे तो जैसे मैंने अक्सर मौलियों को जहन्नुम में टाइम देखा कंप्लीट है। हो गया, टाइम पर भी नजर रखें, टाइम पे मेरी नजर है। भाई जनाब सवाल आपसे ये किया था कि नबी की तारीफ क्या है, और ये जो नबूवत का जो अकीदा आपने लिया है ये कहां से लिया है। किताबें तो आप मानते नहीं हैं, कहते हैं कि किताबें मनसूख हो गई हैं, और नबी भी कामिल नहीं थे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, उन्होंने भी गलतियां की वगैरह वगैरह, गलतियों से माबरा वो नहीं थे वगैरह, जो भी आपका अकीदा है। मैंने आपसे सवाल जो किया उसका जवाब तो आपने दिया नहीं है। नबी की तारीफ आपने बतानी है, और ये नबी का जो अकीदा आपने लिया कि नबी आएगा, जैसे आपका दावा है कि आप नबी हैं, ये कहां से लिया। आया तुरात से लिया, जबूर से लिया, इंजील से लिया, या कुरान से लिया, या किसी और जगह से लिया। ये अकीदा आपने कहां से लिया, इसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। इन 2 चीजों का आपने जवाब देना। नबी की तारीफ करनी है, नबी किसको कहते हैं, ठीक है जी, डेफिनेशन इसकी करेंगे। उसके बाद आप मुझे ये बताएंगे कि ये अकीदा आपने कहां से लिया, किस मजहब से लिया, ये आप मुझे बताएं। अभी 1 मिनट मेरा पड़ा है, आपको मैं अपना टाइम देता हूं, जवाब दें। ओके, पहली मिसाल में तुम्हें ये दे देता हूं कि ईसा इब्ने मरियम जो है वो इस्राएली घराने में पैदा हुआ, ठीक है, वहीं बड़ा पड़ा। फिर उसको नबी किसने बनाया, खुदा ने बनाया। मूसवी शरीयत के अंदर जो अंबिया आए वो मूसी शरीयत के मातहत थे, फिर उनकी अल्लाह ताला से हम कलामी हुई, उन्हें खुदा किसने बनाया। मैं इस्लामी घराने में पैदा हुआ, जब मुझसे खुदा की मुलाकात हुई तो खुदा ने मुझे कहा कि मैंने तुझे रसूल बनाया है। ये रसूल की डेफिनेशन है,
وہ بناتا ہے، وہ نکالتا ہے. اس نے مجھ سے کہا تمہارا جو غصہ ہے وہ خدا کے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ قیامت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اچھائی کی دنیا شروع ہو جائے گی، انسان حق تعالیٰ کی قدر پہچان لے گا، اور مذہب جو تھے، جو دریا تھے، سندھ چناب، یہ جو دریا ہیں، ان کی شناخت جب تک باقی ہے جب تک یہ چل رہے ہیں. جب یہ سمندر میں گریں گے ان کی شناخت باقی نہیں رہے گی. تو جو تعلیم اس نے مجھے دی وہ میں نے پیش کی ہے. ڈیفینیشن تعریف کیا ہے نبی کی؟ تعریف یہ کہ جب انسان ہم کلام ہوتا ہے خدا کے ساتھ، سوال کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے، ادھر سے جواب دیا جاتا ہے، ادھر سے سوال کیا جاتا ہے، دونوں طرف سے ہم کلامی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں نبوت. یہ ڈیفینیشن ہے نبوت کی، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اگر اب جب عیسیٰ ابن مریم نے دعوی مسیح کا کیا تو وہ موسوی شریعت پہ نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ میں جو تعلیم لے کے آیا ہوں وہ انسانیت کی تعلیم ہے، کنگڈم آف گاڈ کی، جو موسی شریعت سے تھوڑا سا کنفرٹیشن کرتی تھی. تو میرے عقائد وہی تھے. میں اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن جب خدا ملا اس نے واضح باتیں کی. ٹائم ختم ہوا. میں نے اپنا ٹائم بھی آپ کو دیا تھا، آپ نے 3 منٹ میرا ٹائم بھی لیا، اپنا ٹائم بھی لیا. 3 منٹ آپ نے گفتگو کی. سوال آپ سے گندم کیا جا رہا ہے، جواب آپ چنا دے رہے ہیں. ہاں جی، تھوڑا مشرق کی طرف جا رہا ہے، جہاں مغرب کی طرف رہے ہیں. آپ کے دعوے اتنے بڑے بڑے، مجھے تو آپ کی عقل کے اوپر پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہلے ہوئے ہیں. صاحب آپ علاج کروائیں، کوئی اپنا علاج کروائیں. تعریف میں نے نبی کی پوچھی، آپ نے رسول کی تعریف شروع کر دی کہ اس کو رسول کہتے ہیں. اور تعریف میں اور صفت میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فرق کیا ہے. تعریف کس کو کہتے ہیں، ڈیفینیشن کس کو کہتے ہیں، اور جناب اس کی ایڈجیکٹو جو ہوتی ہے، جو کنڈیشن، وہ کیا ہوتی ہے. آپ نے مجھے جو نا تعریف کر کے بتا دی ہے، سوری تعریف نہیں، اس کی وہ صفت بتا رہے ہیں کہ جناب رسول یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. سنیں، توجہ کریں، یہ ہوتا ہے جی رسول. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نبی کی تعریف کریں. آپ نے پہلے نمبر پہ رسول کی تعریف شروع کی، اوپر سے جی وہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے ادھر سے پیغام آتا ہے، تو لہذا یہ رسول ہوتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں. یہ آن دی ریکارڈ آپ نے ابھی بات کہی ہے، موجود ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا کہ آپ نبی ہیں اور نبی آ سکتے ہیں؟ تورات سے لیا، زبور سے لیا، انجیل سے لیا، قرآن سے لیا، یا کسی اور کتاب سے لیا، یا کسی اور جگہ سے لیا؟ یہ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے آپ کو اپنا ٹائم دیا تھا. میں رپیٹ کرتا ہوں، رپیٹ اگین. مجھے ان 2 چیزوں کا جواب چاہیے کہ نبی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن، اور یہ جو عقیدہ آپ نے لیا کہاں سے لیا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، میں اپنا آدھا منٹ پھر چھوڑتا ہوں جواب دیں. آپ لوگوں کی کھوپڑی میں یہ باتیں اس لیے نہیں پڑ رہی کہ آپ کی کھوپڑیوں میں اندھیرا ہے. یہ عقیدہ میں نے خدا سے لیا ہے جب اس نے مجھ سے باتیں کی کہ نبی آ سکتا ہے. یہ میں نے کسی نبی سے نہیں لیا جو میں کہہ رہا ہوں. اور یہ عقیدہ بھی خدا نے مجھے دیا ہے کہ آنے والے زمانوں کے اندر یہ زمین نبیوں سے بھر جائے گی، ہر انسان خدا سے ہم کلام ہوگا. یہ عقیدہ میں نے کسی صوفی سے، کسی مولوی سے نہیں لیا. لیکن یہ آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ آپ جو مولوی ٹائپ، مفتی ٹائپ ہیں، اپنے مذہب کو تو جانتے ہیں لیکن آپ اندھے ہیں. آپ کو صرف اسپیشلائزنگ جو ہے اپنے مذہب کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے آپ کی کھوپڑیوں میں یہ باتیں نہیں پڑیں گی. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ خدا سے کر رہا ہوں، اس نے مجھ سے یہ کہیں تو پھر تم فضول باتیں کیے جا رہے ہو کہ یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے، یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے. یہ عقیدہ میں نے نبی سے نہیں لیا. نبی کون ہوتا ہے مجھے یہ عقیدہ دینے والا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں پہلے آپ لوگوں کی طرح، اندھوں کی طرح میں بھی اسلام میں تھا. یہ جب تبدیلی آئی ہے، جب
जब आइए जब खुदा मुझे अपने पास बुलाया। ये है नबी की डेफिनेशन, तारीफ। इससे बढ़ के तारीफ नहीं हो सकती कि मौलवी इकट्ठे हो जाए मक्खियों की तरह और मुंह पे बैठे। समझे कि नहीं? टाइम खत्म हुआ आपका, टाइम खत्म हुआ। फिर अब से खामोश- स्कूल है 15 खामोशी मिनट क्या? अभी तक मुझे बताया जा रहा है, लेकिन चलो छोड़ो। अगला सवाल करें। चलो खैर 15 मिनट मैंने भी छोड़ दिए, 15 सेकंड 15 सेकंड छोड़ दिए, चलो ले लें 15 सेकंड और ले लें। 15 सेकंड तो कह रहे छोड़ दिए। अच्छा आप कर लें 15 चले, सेकंड ज्यादा। मुझे ये बताएं कि ये जो तारीफ आपने की है, मान लेते हैं जी ये तारीफ है नबी की, मान लेती हैं, मैं मान लेता हूं, ठीक है जी। सिर्फ इतना काम कर दें कि ये तारीफ जो आपने की है दुनिया की किसी किताब में, दुनिया की किसी किताब में ये तारीफ लिखी है, चाहे किसी भी मजहब की हो, ये तारीफ मुझे आप दुनिया की किसी किताब से दिखा दें, किसी डिक्शनरी से दिखा दें, किसी किताब में लिखी हो, ये जो आप तारीफ कर रहे हैं ये तारीफ आपने मुझे दिखानी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जनाब मुझे खुदा ने बताया है कि मैं नबी हूं, मुझे खुदा ने बताया है कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। पिछली मर्तबा भी जब इंटरव्यू लिया था तो उसके अंदर भी ये बात हुई थी, लेकिन उसका भी जवाब आपने नहीं दिया था कि आपका जो खुदा है वो आपसे हम कलाम होता है, तो उसकी सूरत हाल क्या होती है, वो सूरत हाल आपने बयान नहीं की थी। बयान जो की थी वो ये की थी कि जनाब मैं यहां से जाता हूं, परवाज लेता हूं, तो ऊपर अर्श पर जाता हूं और जाकर वहां अल्लाह से हम कलाम होता हूं। तो फिर मैंने ये भी कहा था कि जनाब अगर आप जाते हैं तो जाने में कुछ वक्त लगेगा, आपने कहा नहीं एक लम्हा नहीं लगता। तो फिर इसके ऊपर मैंने सवाल किया था कि एक लम्हा कैसे नहीं लगता, कि दुनिया में जब आप जाएंगे ऐसे प्रवास करेंगे तो उसमें तो एक टाइमिंग चाहिए होती है। आपने कहा आधा घंटे के करीब वक्त लगता है, ये ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात। आपने कहा आधा घंटा लगता है मुझे तकरीबन ये आसमानों के पास पहुंचते हुए। जी वक्त भी देखें चले, ना, करें करें। पहले सवाल का जवाब जो है, जब यहूदियत ने ईसा इब्ने मरियम से सवाल किया कि कोई सबूत क्या है तेरे पास, तो उसने बाख्तियार कहा कि हम उसकी गवाही देते हैं। ये मती में पढ़ सकते हैं, लूका में है, ये यूहाना में है। हम उसकी गवाही देते हैं जिसको हमने देखा है। इसी बात पर उसे पत्थर उठा के मारे गए। तो यही बात पहले मैं ये कहूंगा कि किताब से मैंने आपको हवाला दे दिया है कि मैं भी उसकी गवाही देता हूं जिसको मैंने देखा है, जिससे मैंने हम कलामी की है। नंबर 2 बात, खुदा से मिलने की मैंने कहा था कि रहमों में मिला जा सकता है, तो इसका जवाब ये है कि आंख झपकने से पहले भी खुदा से मिला जा सकता है। अगर खुदा ताला परवाज कराए और वहां की इंजॉय कराए, यानी जंतु से आप गुजर रहे हैं, आप जनते हैं किस लिए, लुत्फ के लिए ना, वहां इंसान को सुकून मिलेंगे, खुशियां मिलेंगी, तो अपने हिसाब से भी परवाज कर सकता है। ठीक है, लाइटिंग स्पीड के हिसाब से भी परवाज कर सकता है, पलक झपकने से पहले भी वहां पहुंच सकता है। लेकिन खुदा ताला के पास जब इंसान की मुलाकात होती है नबी की, तो खुदा उसे बुलाता है, खुदा बुलाता है उसे। हाँ, नबी दुआ करता है, पूछता है, और हक ताला उसके लिए दरवाजे खोल देता है। तो ये मिनटों सेकंडों की जो फजूल आपने बहस की है ना, ये वो करते हैं जो अंधे हैं, जिन्हों की अभी तक आलम अरवाह में, जंतों में परवाज नहीं हुई। समझे कि नहीं? ये वो फजूल बातें करते हैं। वहां टाइम जो है वो लिमिटेशन नहीं है। जी टाइम खत्म हो गया। ओके, खत्म हो गया। आपने फिर गंदुम सवाल हो रहा है, जवाब आपका चना आ रहा है। बात आपसे मैं कुछ करता हूँ, जवाब आप कुछ देते हैं, फिर आपके जवाब के ऊपर फिर मुझे कलाम करना पड़ता है।
तो ऐसे कब तक चलेगा? जाहिर साहब, आपको मैंने कहा है आप मेरे सवालात को लिख लिया करें डायरी के ऊपर, उनके जवाब अपने वक्त में आप दिया करें। ये लिखा है, ये आपने लिख के फिर जनाब आपने फिर वही बात कर दी कि वो टाइम स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, नबी के पास फौरी तौर पे वो अल्लाह से हम कलाम हो जाता है जाके। इस चीज को मैं झूठा अभी साबित कर देता हूं, अभी साबित कर देता हूं। अभी जो डिबेट हो रही थी, मैंने आपको कहा कि वो मैसेज निकाल के दिखाएं कि वो मैसेज कहां है जहां पे आपने मुझे अपना पता सेंड किया है। आप वो ढूंढते रहे, आपको मिला वो है नहीं। इतना अगर आप एक लम्हे में खुदा से मुलाकात कर लेते, राब्ता कर लेते, तो आपको वो पता ना चल जाता, आपका खुदा बता ना देता कि जाहिद मियां ये फलां जगह पे ये मैसेज रखा हुआ है। ये आपकी बात यहीं से झूठी हो गई, अगली बातें तो बात की। आपकी ये बात यहां पे झूठी हो जाती है। एक चीज में जो झूठा साबित हो जाए तो बकाया चीजों पे उसका यकीन भी नहीं रहता। ये मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब ने भी कहा था कि जो शख्स एक चीज में झूठा साबित हो जाए उसकी बकाया बातों के ऊपर यकीन नहीं रहता। ठीक है, मिर्जा कादियानी ने भी ये कहा था। तो आप तो एक बात में झूठे साबित मैंने अभी कर दिया आपको, अगली बातों पे आपने यकीन कैसे किया जाए? आप कहते हैं मेरे खुदा ने जो है ना मुझे वो खबर दी है कि मैं नबी हूं। जी जवाब दें मुझे। वक्त पूरा हो गया। अंधे मौलवियों को समझाने के लिए कोई हथियार नहीं है। मैं इसका पहला जवाब तो ये है, तूने ये झूठों की रट लगवाई ना, ये खाम खा की फजूलियात। आपको महराज हुई और मुख्तसर से वक्त में आप चले गए, आपने सफर किया मदीने से, और जब पता लगा काफिरों को तो वो हंसे, उन्होंने मजाक उड़ाया। तो जब ये बात ये लोग लेकर पहुंचे हैं अबू बकर के पास, तो आपने कहा नहीं, ऐसे मुख्तसर वक्त में कोई नहीं पहुंच सकता मदीना से बैतुल मुकद्दस। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बात मोहम्मद ने की है। उन्होंने कहा अगर उन्होंने की तो ठीक की है। तो अगर वो इतने मुख्तसर वक्त में पहुंच सकते हैं जो मदीना से वहां तक, और फिर खोतों पे बैठ के क्यों जाते थे? वो क्यों सफर करते थे खोतों पे? क्यों अपना माल लाद के लेके जाते थे? तो आपका दिमाग जो है वो यहाँ पे हिल गया है। दुनियाई बातों को और रूहानियत को आप मिला देते हैं, इसलिए आपकी खोपड़ी जो सी है ना ये फजूल हो गई है। आप अपनी किताबों का पहले मुतायदा किया करें। गुलाम अहमद कादियान के साथ आपने जो किया, आपने उसको फंसा लिया फजूलियात में कि नबी आ सकता है या नहीं आ सकता। उसको चाहिए था आपकी ये बकवास छोड़ के वो तालीम पेश कर देता जो उसे दी गई थी। तो आपकी अल्लाह ज़िनियों में पड़ गए, वो सारी जिंदगी मुनाजरे कर रहा। ठीक है कि नहीं? मैं इस किस्म की फजूलियात में नहीं पढ़ता। मुझे पता लग गया है कि मौलवी जो है ये शैतानों की औलाद है, इनके साथ कोई डायलॉग नहीं हो सकते। तो गुलाम अहमद कादियान का काज़ब होना टाइम कंप्लीट हुआ जी। वो क्या जी, गुजारा ये है जाहिर साहब के एक तरफ आप इस्लाम को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते, और आपको अपनी दलील देने के लिए इस्लाम का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको अपनी दलील देने के लिए इस्लाम का सहारा देना पड़ रहा है। मिसालें देने के लिए आपको इस्लाम की मिसालें लाकर देनी पड़ रही हैं। मैंने आपसे जनाब ये जो पूछी थी नबी की तारीफ, वो आपने कहीं से साबित नहीं की। मैंने कहा दुनिया की किसी किताब से भी साबित कर दे, आपने वो अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने जबकि आपको आपकी अभी वाली डिबेट से आपको कज़्ज़ाब, झूठा, फ्रॉडिया साबित कर दिया है। उसकी दलील आपके सारी दुनिया ये सुन रही है, आपके सामने है। आप कहते हैं कि मैं एक लम्हे में अपने खुदा से मुलाकात कर लेता हूं, पैगाम ले लेता हूं।
अगर आपका खुदा आपको एक लम्हे में बताता है तो अभी पूछ लें, इतना वक्त गुजर गया है, वो मैसेज कहाँ पे है जो आपने मुझे जर्मनी का अपना एड्रेस सेंड किया, आप 5 मिनट आपने लगाए, आपको मिला फिर भी नहीं। जनाबे मन, आपको मैंने अभी इसी डिबेट के अंदर झूठा साबित कर दिया है। आपने इसका रद्द करना है, इसका रद्द करें मेरी इस दलील का, जो कि वो कहते हैं ना कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तो अभी मैंने दलील दे दी है, आपको झूठा और कज़ाब साबित कर दी है। पिछली डिबेट के अंदर मैंने आपको खबती और आपका जो दिमाग हिला हुआ है वो साबित किया था, याद है ना आपको? तो इसके अंदर मैंने आपको कज़ाब भी साबित कर दी है, ठीक है? अब ये जो मैं साबित कर रहा हूं इसकी आपने नफी करनी है। हो गया, वो कह रहा जी हो गया, करें, ठीक है कि नहीं? वो तारीफ दीजिएगा मुझे, दुनिया की किस किताब में लिखी है? अंधों को, तुम्हारे जैसे अंधों को जो मुफ्ती समझते हैं अपने आप को, तुम्हारा आईना दिखाना बड़ा जरूरी है। अब तुम कहते हो कि मैं इस्लाम को मानते नहीं, तो हम इस्लाम की क्या सुने, अपने से बात करें। और तुम्हारी तालीमात तुम्हारे सामने रख रहा हूं, अगर तुम्हारी चर्बी नहीं चढ़ गई तुम्हारी आंखों के ऊपर, कि रूहानियत को और जाहिरी दुनिया को नहीं मिलाना। नबी आम इंसानों की तरह काम करते थे, आम इंसानों की तरह सफर करते थे, फिर जब रूहानी मामला होते थे तो मुख्तसर सफर में वो फासला तय कर लेते थे। अब ये जाहिलों की तरह अब तुम मुझे झूठा कहे जा रहे हो, तुम ये नहीं देख रहे कि सबसे बड़े झूठे तुम हो, कि तुम अपनी किताबों पे खुद ही नहीं सुन रहे हो लेकिन बह रहे हो। तुम समझे कि नहीं? तुम्हें समझ नहीं लग रही कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, फजूल। 5 मिनट मैंने एड्रेस तलाश नहीं किया, ठीक है? अब मैं तुम्हें फिर अंधों को तुम्हारी हदीसों से ही बताऊंगा। एक सफर के ऊपर जब आयशा का हार गुम हो गया, सारा दिन तलाश करते रहे, तो जब वो उठा, बाद में ऊँट, तो वो जो अपना हार था वो ऊँट के नीचे था। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता नहीं लगा कि वो हार ऊँट के नीचे पड़ा हुआ है? ये क्या काजब की तरह क्या झूठी बातें कर रहे हैं कि 5 मिनट एड्रेस नहीं पता हुआ। जब काफिरों ने बुलाया था उन्हें, उन्होंने यही तो बात की थी कि मुझे दिखाओ, ये बताओ, वो दिखाओ। ये है तुम, ये हो तुम मौलवी, अंधे मौलवी। तो आपने कहा था कि मैं चले, की बातें, टाइम खत्म हुआ, मैं आपको तस्वीर पेश कर रहा हूं अपनी। टाइम खत्म हुआ। फिर सेकंड है, आप मेरे 5-10 सेकंड लिए जा रहे हैं, चलो बात करें। ओके, मैं इस तरफ आना नहीं चाह रहा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का मौजू या उनका नाम भी इस डिबेट के अंदर लूं, क्योंकि वो अजीम हस्ती और कज़्ज़ाबों और दज्जालों की महफिल में उनका क्या तज़किरा। तो आपने जब उनके ऊपर अब नुक्ताचीनी की है तो मुझे भी अब इजाज़त है कि मैं इसके ऊपर कलाम करूं। गुजारा ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये दावा नहीं किया कि मैं एक लम्हे में अपने खुदा से हम कलाम हो जाता हूं और जो मर्जी उनसे जाके पूछ लेता हूं। अगर कोई है तो लाएं पेश करें स्टेटमेंट लेके। एक बात ये आपके ऊपर लाजिम है, आपने ये दावा किया पिछली डिबेट में भी अभी किया कि मैं तो लम्हे भर में अपने खुदा से हम कलाम हो जाता हूं। मैंने उस चीज का रद्द करने के लिए आपको कज़्ज़ाब और झूठा साबित किया। आपको कहा कि आपको एक मैसेज नहीं मिल रहा। अगर आप अपने खुदा से हम कलाम होते हैं तो लाए वो मैसेज, पूछें अपने खुदा से किस जगह पे है। और आप को चाहिए ये था कि आप मुझसे माजरत करते कि बड़ी गलती हो गई मुझसे। आपने गलती की माजरत किए बगैर ही जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेना शुरू कर दिया और उनकी मिसालें देनी शुरू कर दी। रही बात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के वो हार के गुमने वाला मामला, वो उसका हमारी डिबेट के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। डिबेट हो रही है म्यारे नबूवत के ऊपर,
जिसके ऊपर अभी 2 सवाल कायम किए थे, उनके 2 के जवाब अभी तक आपने दिए नहीं, और खलते मबहस करने के लिए बात कहीं पे कहीं लेके जा रहे हैं मिर्जा गुलाम कज्जाब की तरह। मिर्जा गुलाम कादियानी कज्जाब भी ऐसे ही था, वो सवाल गंदुम होता था, जवाब चना दे के बात को गोलमोल कर देता था। जो सवाल हुए उनका जवाब दें, चले करें बात। बस तो क्या, सबसे पहली बात ये है कि मुफ्ती साहब आप गुजरावाले में बैठे हुए, ये आपकी सबसे अच्छी जगह है। अगर यहाँ होते ना तो मैं पागल खाने पहुंच के तुमसे इंटरव्यू लेता। एक बात, क्या अबू बकर ने ये नहीं कहा था कि उनके पास लहनों में खबर आसमानों से आ जाती है? वो तालीम, मैंने तुम्हें कब कहा था कि मैं इनकारी हूं उस तालीम का? मैंने कहा कि अब जो दौर चलेगा वो खुदा का दौर चलेगा। ये रेफरेंस दे, रेफरेंस दे, रेफरेंस दे, रेफरेंस दे मुझे। खामोश हो जाओ, मुझे बात करने दो 2 मिनट, समझे कि नहीं? फिर आप जो बार बार कह रही हैं काज़िब, झूठा, गुलाम अहमद कादियानी को, ये तालीम आपने कहां से सीखी? क्या तुम्हें रसूलुल्लाह ने ये खबर दी है कि तुम झूठा कहो, गालियां निकालो, काज़िब कहो? है, वो नबी था, अल्लाह का रसूल था, तुम्हें किसने खबर दे दी कि तुम ऐसी फजूलियात, इस वजह से तुम्हें जहन्नम के बीचों बीच देखा जाएगा। दूसरी बात, मैं अहमियत से कोई टका नहीं लेता, ना मैं अहमियत में पैदा हुआ, ना मेरी अहमियत से कोई ताल्लुक रहा, लेकिन जब हक ताला ने मुझे दिखा दिया कि वो नबी था, उसने अपना मिशन पूरा नहीं किया, तो मैंने खुल के बातें कह दी सबको, समझेंगे नहीं क्या कर रहे हैं? अब नबियों की किताब जो है उसका आपने अहदनामा नहीं पढ़ा, आपकी खोपड़ी जो है वो सिर्फ कुरान तक है, इस्लाम तक है। इसलिए मैं आपको पहले कि जाहिल है, नैरो माइंडेड है, तंग नजर है आप, वरना पुराने अहदनामे से अक्सर पता लगता है, अगर आप आखिरी रेवोल्यूशन भी पढ़े, रेवलेशन, कि नबियों के साथ ये मामला हो चुके हैं। वो कह रहा वक्त खत्म हो गया। जी, वक्त खत्म हो गया। आप मुझे बता दें, आप कौन सी जुबान समझते हैं मियाँ? कौन सी जुबान समझते हैं आप? सवाल आपसे मैं कुछ और करता हूँ, जवाब कोई और देते हैं। अभी आपने एक और नई बात शुरू कर दी, हजरत अबू बकर सदीक ने नहीं फरमाया। मैंने आपसे रेफरेंस पूछा, रेफरेंस दे। ये मिर्जा गुलाम कादियानी कज्जाब जिसको आप नबी कह रहे हैं, वो भी ऐसे ही कहता था, वो भी ऐसे ही करता था। ये हदीस में आया है, ये फलां जगह आया, अबू बकर ने कहा है, हजरत उमर फारूक ने कहा है, हम जब तलाश करते हैं हमें कहीं भी नहीं मिलता। और तुम सब कज्जाबों ने, झूठों ने यही काम पकड़ा हुआ है बस, है जी। वो उसने कहा, जब हवाला पूछा जाता है तो आप लोगों के पास हवाला ही को नहीं होता, और आगे से दांत निकाल के दिखा देते हैं आप लोग। ये क्या ड्रामे शुरू किए हुए हैं आप लोगों ने, बताएं। और जनाब सवाल कोई और होता है, जवाब कोई और देते हैं आप लोग। एक तरफ आप मिर्जे कज्जाब को नबी मान रहे हैं, वो अल्लाह का नबी था, हाँ जी जनाब। अभी मैं उसके मौजू के ऊपर, जिसको आप नबी कह रहे हैं, उसके मौजू के ऊपर ही गुफ्तगू कर दूं तो जनाब ये बात बहुत तवील हो जानी है। और दुनिया का एक नंबर का फ्राडिया, एक नंबर का फ्राडिया जनाब, और वो पल पल में झूठ बोलता था। उसकी जितनी किताबें हैं, कोई एक सफा नहीं मिलेगा जिसमें झूठ ना हो। और उसी तरीके से वो देखे, पानी अब आपने फिर पीना शुरू कर दिया, गला आपका खुश्क होना शुरू हो गया है। गुजारा ये है कि मैंने आपको कहा था कि आप अपना प्रॉपर तौर पे इलाज करवाएं, माइंड, अपने दिमाग का इलाज करवाएं। आपका दिमाग हिल गया, समझ आई कि नहीं? आप मेरी जो है ना रिक्वेस्ट के ऊपर गौर तो करते नहीं है। अपना इलाज करवाएं, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, अशद जरूरत है। आप मुझे नबी की तारीफ आपने साबित करनी थी, जो आपने की है दुनिया की किसी एक किताब में अभी तक आपने साबित नहीं की। खत्म हो गया, ठीक है। ये मौलवियों और मुफ्तियों पे पाकिस्तान में लानत इसलिए पड़ गई कि आप लोगों ने गुलाम अहमद कादियान का इनकार किया। मैं सच बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि तुम्हारी खोपड़ी के अंदर गंद भरा पड़ा है। वो कदियान एक छोटी सी बस्ती थी, उसने वहां दावा किया
اور ابھی اس جماعت کو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اندھے لوگوں تمہیں اس بات کو ابھی تک تم نظر انداز کیے جا رہے ہو کہ وہ فراڈی تھا، وہ یہ تھا. تمہارے سامنے، تمہاری ناک کے نیچے یہ جماعت پھیلتی جا رہی ہے، افریقہ میں پھیلتی جا رہی ہے. اور ایک دن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھٹے مار کے مولیوں کو نکال دو اور یہ پاکستان کا ٹھیکہ جو ہے یہ احمدیت کو دے دو. میں تو نہیں آنے لگا کیونکہ مجھے تعلیم یہاں کی دی گئی ہے، یورپ میں. تو یہ پاکستان کا کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں. وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ تمہاری اللہ کی وجہ سے باتوں کا عذر کرتا تھا. عذر جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا. تم 24 گھنٹے ڈنڈے لے کے تم مسلمان اندھوں کی طرح اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ عذر کر جاتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا. اس کو برکتیں ملی ہیں. دیکھو اس کی جماعت جو ہے کہاں سے کہاں پھیل گئی، اور تم تل کا زور لگا کے کچھ نہیں کر پا رہے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانوں میں یہ اہمیت تمہارے ہاں بھی چلی جائے اور تم مولیوں کا صفایا کر دے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑا سا غور کرو. اسے فراڈی کہنے، جو تم گل کھولو گے اتنا ہی اپنی آخرت کو تباہ کرو گے. تم باہر آ جاؤ. جی، گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا آپ نے بھرپور طریقے سے دفاع کیا اور اس کو کہا کہ نبی ہے، رسول ہے اور وہ سچا انسان ہے، اور ہم پہ یہ وبال آ گیا جو اس کو نبی نہیں مانا. اور اب یہاں سے پھر میں آپ کو کذاب اور دجال ثابت کرنے لگا ہوں. توجہ ابھی سنیں، توجہ سے سنیں، تحمل رکھیں، تحمل رکھا کریں. مرزا کذاب نہیں کہا تھا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا، جس کو ابھی آپ نے اس کا پورا اوپر سے لے کے نیچے تک زور لگا کے اس کو نبی بھی ثابت کیا اور کہا کہ اس نے سچ کہا، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. اس نے اگر سچ کہا تو پھر آپ تو کذاب پکے ثابت ہو گئے، جھوٹے ایک نمبر کے فراڈیے ثابت ہو گئے. کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں، اب ریفرنس چاہیے تو مجھے بتائیے گا، میں ابھی دیتا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے کہا ایک ہوں میں آخری ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. آپ تو پھر پکے کذاب ثابت ہو گئے. دیں جواب اس کا. 3 مرتبہ میں آپ کو کذاب ثابت کر چکا، 3 مرتبہ. مولیوں نے جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ٹھیکہ لیا ہوا تم نے. اس نے تو کھلے طور پہ کہا، ہر احمدی جانتا ہے کہ میرے بعد 1000 آئے نبی مسیح، اپنے وقت اس وقت کا میں ہوں. یہ کون سی دنیا میں رہتا ہے؟ چاند پہ بیٹھا ہوا ہے مفتی مولوی ہے، لے کے مولیوں کا ٹولہ چاند پہ بیٹھ جا. یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ کذاب مجھے کہہ رہا اور جھوٹ خود بولے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ. انہوں نے کہا کہ میرے بعد 1000 آئے، اس وقت کا میں ہوں. پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کہیں الہام کی بارش ہو کسی دل پہ، جاؤ اور سنو کہ وہ کیا کہتا ہے، ڈھاکہ نے الہام کی بارش کی ہے. اس نے تو کوئی ایسی فضولیات باتیں نہیں کی. تم 100 سال سے اس پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو اندھوں کی طرح. تمہارا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ دوزخ ہی ٹھیک کر سکتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ فرشتے جب تمہیں ماریں گے نا، جب چھتراؤ کریں گے تم لوگوں کا، پھر تمہیں سمجھ لگے گی. اور یہ تم جو کام کر رہے ہو، اس سے مجھے رسول اللہ نے پیغام دیا کہ میں ان مولیوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں یہاں سے تنگ آ چکا ہوں. اس مولیوں نے 72 فرقے کیا، ہزاروں فرقے جو ہیں، ان لوگوں نے لعنت ڈال دی ہے. نہ تم نے اسلام کو بگاڑ کے پیش کیا ہے. یورپ میں بھی یہی حال ہے. تمہیں دیکھتے کے ساتھ ہی نا لوگوں کی طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں. جی جی زاہد صاحب، جی زاہد صاحب، زاہد صاحب گزارش یہ ہے کہ ہماری جی ایک بات تو سن لینا، 1 گھنٹہ ہماری گفتگو کو ہو گیا ہے. 2 بجے بات تو سنیں، 1 گھنٹہ گفتگو کو ہو گیا ہے. بات تو سن لینا، اور بات تو سن لیں. 3:03 ہو گئے ہیں. بات تو سن لیں، میں کہہ رہا ہوں 1 گھنٹہ گفتگو کو ہو گیا ہے. ہم اس کو نیکسٹ ٹائم پہ ڈال لیتے ہیں یہ سوالات، یہ ٹھیک ہے، اور اس کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن 1 گھنٹہ کافی ہے، سننے والوں کو بھی زیادہ دقت نہ ہو، تو بہرحال 1 گھنٹہ کافی ہے. تو ابھی آپ پھر بتائیں مجھے کہ ابھی نیکسٹ ٹائم کب؟
nächste Mal, wo bin ich? Sonntag ist Weihnachtszeit. دیکھیں اگلے ہفتے جو ہے یہ کرسمس ٹائم شروع ہو جائے گا یہاں کا. تو جو ہمارے ماننے والے انہوں نے ہمیں بنایا ہوا ہے. تو when is the best day to paint site? Wenn das immer Sonntag sein muss, Ja. dann erst in 3 Wochen. In 3 Weil Wochen. nächste Woche ist Weihnachten und darauf ist... اگر آپ پہلی جنوری سے شروع کر دیں تو بہتر ہوگا کیونکہ یہ اب یہ ہالیڈیز آ رہی ہے مجھے صبر کرنا پڑے گا. بتا دیں ٹائم بتا دیں ریکارڈ میں رہے. ایسے جنم Aber sind wir nicht da? ایسے جنم nein in Januar ich meine Januar nicht erste Januar. Ach so, erste Sonntag im Januar. Erste Sonntag, Ja, guck. egal oder zweite, egal. Aber locker sein muss. Der erste Sonntag im Januar ist der 7. Ich habe nicht angeplant, oder? Nee, 7. Januar ist okay. یہ 7 جنوری ہے جی, یہ اتوار آ رہا ہے, دیکھیں آپ. 7 جنوری 7 جنوری کو اتوار ہے, پہلے ہفتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہی 2 بجے ٹائم کے یہ 2 مطابق. بجے کا وقت ہے. اور ذرا آپ اپنے گروپوں کو یہ تاکید کریں کہ ماں بہن کی گالیاں صبح سے شام نہ دیا کریں, ٹھیک ہے؟ جی آپ کو خوش ہونا چاہیے. یہ گالیاں والا وہ معاملہ پھر کریں گے, ٹائم کافی ہو گیا ہے. آپ کو سینہ بڑا رکھنا چاہیے اور منظر عام پہ آئیں, تھوڑا سا نکلے باہر. پتہ تو آپ نے سینڈ کیا کو نہیں, پتہ بھی مجھے سینڈ کریے گا, ٹھیک ہے جناب؟ بہت شکریہ. 7 جنوری اتوار کا 7 جنوری اتوار